لیکن میں سنسیئر ہو کر کہتا ہوں کہ ان کتابوں کے اندر میں نے بہت تلاش کیا پچھلے 2 دنوں سے، لیکن کسی بھی کتاب کے اندر یہ سٹیٹمنٹ نہیں ہے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، بلکہ اس کا الٹا میں نے میرے محترم عزیزو، آج ایک بڑا خلاصہ آپ کی خدمت میں ہونے جا رہا ہے۔ آپ کو ویڈیو پر آخر تک بنے رہنا، اس لیے کہ اس ٹاپک کو لے کر سوشل میڈیا پر ایک کوہرام برپا ہے، اور آج 4 باتوں میں سے جو مفتی سلمان ازہری صاحب نے 4 باتوں کا سوال کیا ہے، ان میں سے 2 بات کا ایسا کلیئر کٹ خلاصہ یہ عالم دین کرنے والے ہیں، جس پر ہمیں آپ کو آخر تک بنے رہنا ہے اور اس خلاصے کو سننا اور سمجھنا ہے کہ ہم سب چاہتے ہیں، مسلمان چاہتا ہے کہ دنیا میں مسلمانوں کے اندر اتحاد قائم ہو، آپس میں جوڑ قائم ہو، آپس میں ایکتا اور محبت قائم ہو۔ تو وہ مسلمان اگر ویڈیو پہ جتنے بھی مسلمان آئیں جو ایکتا اور محبت چاہتے ہیں، تو یہ 2 جواب کو سننے کی کوشش کریں۔ ویڈیو میں 4 جواب ہے، لیکن 2 جواب ہی میں دکھا سکوں گا، اس لیے کہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، لیکن بہت دھیان بہت توجہ سے دیکھنا ہوگا۔ ہاں، ایسے ہی آپ دیکھیں گے تو سمجھ میں پھر نہیں آئے گا۔ اور یہ علماء دین نے سمجھانے کی کوشش کی ہے، ہمیں اچھی نیت سے، نیک نیت سے اسے سننا ہے تاکہ ہمارا دل صاف ہو سکے۔ سچ مچ میں ایسا نہیں کہ بس ہم کوئی نہ کوئی کمی نکالنے کی نیت سے پھر سننے لگیں، ہمیں صحیح بات پتہ چل سکے اور ہمارا دل صاف ہو سکے تاکہ ہمارا گلے ملنا آسان ہو۔ میرے محترم عزیزو، ہمیں کسی مسلک کی طرف نہیں آنا ہے، ہمیں مذہب کی طرف آنا ہے۔ آئیے اس ویڈیو کو دیکھیں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، ایک کتاب میں لکھا گیا اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، لیکن میں سنسیئر ہو کر کہتا ہوں کہ ان کتابوں کے اندر میں نے بہت تلاش کیا پچھلے 2 دنوں سے، لیکن کسی بھی کتاب کے اندر یہ سٹیٹمنٹ نہیں ہے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، بلکہ اس کا الٹا میں نے فتاوی رشیدیہ کے اندر ایک فتویٰ دیکھا ہے۔ میرے پاس تالیفات رشیدیہ ہے، اس کے اندر فتاوی رشیدیہ موجود ہے۔ فتاوی رشیدیہ صفحہ نمبر 96 میں کتاب العقائد کا پہلا ہی فتویٰ انہوں نے لکھا ہے۔ اس میں ایک سوال ہے کہ ذات باری تعالی عز اسمہ موصوف بصفت کذب ہیں یا نہیں، اور خدا تعالی جھوٹ بولتا ہے یا نہیں، اور جو شخص خدا تعالی کو یہ سمجھے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے وہ کیسا ہے۔ اس کے جواب میں مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ذات پاک حق تعالی جل جلالہ کی پاک و منزہ ہے اس سے کہ متصف بصفت کذب کیا جائے، معاذ اللہ تعالی اس کے کلام میں ہرگز شائبہ کذب کا نہیں ہے۔ قال اللہ تعالی ومن اصدق من اللہ قیلا، جو شخص حق تعالی کی نسبت یا عقیدہ رکھے یا زبان سے کہے کہ وہ کذب بولتا ہے، وہ قطعاً کافر ہے اور ملعون ہے اور مخالف قرآن اور حدیث کا اور اجماع امت کا ہے، وہ ہرگز مومن نہیں۔ اس فتوے کے اندر مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے، جو علماء دیوبند کے بڑے اماموں میں سمجھے جاتے ہیں، انہوں نے بہت ہی وضاحت کے ساتھ یہ بات لکھی ہے کہ اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے تو وہ قطعاً کافر ہے، دین اسلام سے خارج ہے، بلکہ مولانا نے اس کو ملعون بھی لکھا ہے۔ تو یہاں سے بات صاف ہو گئی کہ علماء دیوبند میں سے کسی نے بھی اللہ کے بارے میں یہ نہیں بولا کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے۔ اگر اب بھی یقین نہیں آ رہا ہے تو علماء دیوبند کے عقائد پر بڑی مضبوط کتاب شائع ہوئی ہے، المحنت علی المفند۔ اس کے صفحہ نمبر 88 میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ علماء عرب نے علماء دیوبند سے سوال کیا تھا کہ کیا اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، تو اس کے جواب میں مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ اس کتاب کے اندر صفحہ نمبر 88 میں لکھتے ہیں، اور یہ جو بریلوی کہتا ہے کہ اس کے پاس مولانا یعنی رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے کا فوٹو ہے جس میں ایسا لکھا ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ مولانا قدس سرہ پر بہتان باندھنے کو یہ جعل ہے جس کو گھڑ کر اپنے پاس رکھ لیا ہے۔ تو اس عبارت سے بھی صاف معلوم ہو گیا کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے ایسا اسٹیٹمنٹ کسی بھی عالم نے کسی بھی کتاب کے اندر نہیں لکھا۔ تو پہلی عبارت فارغ ہو گئی کہ علماء دیوبند نے کہیں بھی نہیں لکھا کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے۔ اب چلیے مفتی سلمان ازہری صاحب نے جو دوسری عبارت پیش کی ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال نماز میں آنا گدھے اور بیل کے خیال سے بدتر ہے، اور ریفرنس میں انہوں نے نام لیا کہ تقویت الایمان میں یہ عبارت موجود ہے۔ مولوی اسماعیل دہلوی صاحب نے یہ تخلیق دیا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خیال نماز میں آنا گدھے اور بیل کے خیال سے بدتر ہے۔
तक़वियतुल ईमान में। तक़वियतुल ईमान हमारे पास मौजूद है। तक़वियतुल ईमान के किसी भी सफ़ा के अंदर मौलाना इस्माइल शहीद रहमतुल्लाहि अलैह ने ऐसी कोई भी बात नहीं लिखी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नमाज में ख़याल आना ये गधे के ख़याल से या बैल के ख़याल से नऊज़ु बिल्लाह बदतर है। ये बात असल में सिरात मुस्तकीम के अंदर लिखी हुई है। सिरात मुस्तकीम का PDF मैंने इंटरनेट से डाउनलोड किया हुआ है, उसके मुताल्लिक़ा सफ़हात को फ़कत मैंने प्रिंट आउट निकाल लिया है। ये असल में फ़ारसी किताब है। तसव्वुफ़ और तरीक़त के बारे में इसके अंदर मालूमात लिखी हुई हैं। कोट किया जाता है अक्सर मौलाना इस्माइल शहीद रहमतुल्लाहि अलैह के हवाले से। वो कोट फ़ारसी में है, मैं आपके सामने फ़ारसी भी पढ़कर सुनाता हूँ और उसका तर्जमा भी करने की कोशिश करता हूँ। मौलाना इस्माइल शहीद रहमतुल्लाहि अलैह सिरात मुस्तकीम के सफ़हा नंबर 95 में लिखते हैं, आरे बमुक़्तज़ाए ज़ुल्मातुन बाज़ुहा फ़ौक़ बाज़ अज़ वसवसाए ज़िना ख़याले मुजामअते ज़ौजाए खुद बेहतरस्त व सर्फ़ हिम्मत बसूए शेख व अमसाल अज़ मुअज़्ज़मीन गो जनाबे रिसालत मआब बाशंद बचंदी मरतबा बदतर अज़ इस्तिग़राक़ दर सूरत गाँव खरे खुदस्त के ख़याल बा ताज़ीम व इजलाल बसोदाए दिल इंसान मी चस्पद बखिलाफ ख़याल गाँव खर के ना कदर चस्पीदगी मी बोद व ना ताज़ीम बल्कि मुहान व मुहक़र मी बोद व ई ताज़ीम व इजलाल गैर के दर नमाज मलहूज़ व मक़सूद मी शवद बशिरक मी कशद। इसका तर्जमा मैं आपके सामने पढ़कर सुना देता हूँ। मौलाना इस्माइल शहीद रहमतुल्लाहि अलैह लिखते हैं कि हाँ बमुक़्तज़ाए ज़ुल्मातुन बाज़ुहा फ़ौक़ बाज़, ज़िना के वसवसे से अपनी बीवी की मुजामअत का ख़याल बेहतर है। यानी नमाज में ज़िना का ख़याल करने से अपनी बीवी से सोहबत करने का ख़याल कर लेना बेहतर है। और शेख या उसी जैसे बुज़ुर्गों की तरफ खा जनाब रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, सर्फ हिम्मत करना अपने बैल और गधे की सूरत में मुस्तग़रक़ होने से बदरजहा बदतर है, क्योंकि शेख का ख़याल तो ताज़ीम व तकरीम के साथ इंसान के दिल की गहराई में पैवस्त हो जाता है, और बैल और गधे के ख़याल को न इस कदर चस्पीदगी होती है और न ताज़ीम, बल्कि वो ख़याल हक़ीर और ज़लील होता है। और गैरुल्लाह की ये ताज़ीम व तकरीम जो नमाज में मलहूज़ व मक़सूद होती है, शिरक की तरफ खींच कर ले जाती है। असल में तसव्वुफ़ की एक इस्तिलाह है सर्फ़ हिम्मत। सर्फ़ हिम्मत के बारे में मौलाना इस्माइल शहीद रहमतुल्लाहि अलैह इस किताब के अंदर लिख रहे हैं। सर्फ़ हिम्मत का मतलब ये होता है कि बाज़ मरतबा शेख अपने मुरीद को ये हुक्म देता है कि पूरे ख़यालात से अपने दिलो दिमाग को हटाकर सिर्फ अपने शेख का ख़याल पूरे इज़्ज़त व एहतराम के साथ। मेरे मोहतरम अजीजों, आपने इनकी जुबानी सुन लिया और इन्होंने जो खुलासा किया है, चार अकायद का जो इन्होंने दो खुलासा किया है, मेरे मोहतरम अजीजों, अगर हम नेक नीयत से सच्चाई के साथ अगर हम जानने की कोशिश कर रहे हैं और अगर हमारी नीयत में ये है कि हकीकत में हम गले मिलना चाहते हैं, तो ये खुलासा आपको सुनने के बाद कितनी गहराई में आप गए, कितनी बात समझ में आई, आप कमेंट करने की कोशिश करिए। जबकि किसी मुसलमान की ऐसी नीयत नहीं होनी चाहिए कि हमें दूरी हो या हम नुक्ताचीनी निकालने की कोशिश करें, चाहे देवबंदी मसलक हो चाहे बरेलवी मसलक हो। हर मसलक की नीयत हो कि मुसलमान में एकता और मोहब्बत पैदा हो जाए। और अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से हुक्म भी है कि ए ईमान वालों, आपस में एक हो जाओ, आपस में एक हो जाओ। मेरे मोहतरम अजीजों, मैं सारी दुनिया के मुसलमानों को एक बड़ा पैगाम देना चाहता हूं कि हमें मसलक नहीं बचाना है, हमें मजहब बचाना है। अगर कोई बात किसी के समझ में नहीं आ रही है तो मोहब्बत अखलाक से उसके कंधे पे हाथ रखकर उसकी लाइल्मी को दूर करने की कोशिश की जाए और कुरान और सुन्नत की रोशनी में दलील पेश करने की कोशिश की जाए, ना कि दूरियां बनाई जाए। अगर वो मानने के लिए तैयार नहीं है फिर भी हम उसके लिए दस्तरखान बिछाएं, उसको अपनी दावत पर बुलाएं, उसे हदिया दें। ये हमारे नबी की सीरत है। हमें तो दूर कर दिया गया, जिसका नुकसान सिर्फ उलमाए कराम को नहीं, सिर्फ मसलक वालों को नहीं, जो मसलक के पाबंद लोग हैं, जो बहस मुबाहिसा कर रहे हैं, बल्कि दुनिया के तमाम मुसलमानों को यह नुकसान पहुंचा है। मेरे मोहतरम अज़ीज़ों, अल्लाह रब्बुल इज्जत की हमारी पूछ होगी। इसलिए हम मसलक की बुनियाद पर मोहब्बत और अखलाक के साथ बहस मुबाहिसा करें, बैठ कर तन्हाई में करें, ताकि एक बड़ा तबका मुसलमानों का जो नुकसान की तरफ जा रहा है और जो जिस पर जुल्म हो रहा है, जो मॉब लिंचिंग का शिकार हो रहा है, वो बच जाए और मोटी मोटी बात पहुंचाना आसान हो। मेरे मोहतरम अज़ीज़ों, आपसे बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट और गुजारिश है कि वीडियो को आज शेयर करना और वीडियो में जो मैंने दिखाया है उसमें कितनी सच्चाई आपको नजर आई उसके लिए कमेंट करना। आप एक हल्का
जो है समझ कर छोड़ कर चले जाते होंगे वीडियो कि ये कौन है, ये तो बहुत से चेहरे ऐसे आते होंगे। मैं एक तड़प और फिक्र लेकर आया हूं मेरे मोहतरम अजीजों, मैं एक तो मोहब्बत की पूरी ताकत लगाने की कोशिश कर रहा हूं, और मैं किसी की तरफ से नहीं हूं, मुझे डर लगता है किसी की तरफ होने में, इसलिए कि हम अल्लाह रसूल की तरफ होने आए हैं और अल्लाह रसूल की तरफ होकर जिंदगी गुजारने आए हैं, और उसी पर अपना जीना अपना मरना सब कुर्बान करने आए हैं। हम किसी की तरफ होकर दुनिया में कितने दिन रहेंगे, हमें अल्लाह रसूल की तरफ होना है। वो जिस तरह जैसे जैसे कह रहे हैं वैसे वैसे हमें उनकी बातों को मानते जाना है, चाहे सारी दुनिया हमसे नाराज हो जाए, चाहे सारी दुनिया के लोग हमसे नाराज हो जाएं, हमें वो करना है जो अल्लाह रसूल की तरफ से हम पर पैगाम पहुंचाया गया है, हम पर शरीयत लागू की गई है। चाहे हमारा कितना बड़ा भी आलिम हो, हम उसकी कदर जरूर करेंगे, लेकिन अगर हमें अल्लाह रसूल के खिलाफ, भाई जाहिर सी बात है गलतियां तो सिर्फ नबियों से नहीं होंगी ना, लेकिन बाद में जो उम्मत आई है उनसे गलतियां हो सकती हैं। तो पता है चला हम कुरान हदीस की रोशनी में तहकीक करके उस आलिम की बात नहीं मानेंगे जो हमको कुरान हदीस से नाखून के बराबर भी अगर क्रॉस कर रहा है, यानी गलत बता रहा है, तो उसको हम बताने और समझाने की कोशिश करेंगे। ये हर मुसलमान का फर्ज है। हाँ, किसी की अकीदत में, किसी की शख्सियत परस्ती में है, हम उसको हक बात ना पहुंचा पाए, फिर अल्लाह पूछेगा कि उलमा की बात तुम मानने आए थे कि कुरान हदीस की, कि अल्लाह रसूल की बात मानने आए, तो उलमा की बात तो मानना ही है, लेकिन जो बात खटके, सवाल मेरा समझने की कोशिश करिएगा, नहीं तो आप कमेंट उल्टा कर सकते हैं, जो बात खटके यार ये तो कुरान हदीस से साबित नहीं है, ये तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से साबित नहीं है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर होते तो ऐसा ना करते, तो फिर ये मौलाना कैसे कर रहे हैं? एक सवाल आप खड़ा करिए, पूछिए उनसे, हो सकता है वो बात आपकी उस आलिम दीन के समझ में आ जाए और दीन का एक बड़ा फायदा हो जाए मेरे मोहतरम अजीजों। हालांकि आप किसान हैं, दुकानदार हैं, मजदूर हैं, लेकिन आप पहले मुसलमान हैं, आपका हक है, फर्ज है, चाहे दुनिया का कोई भी इंसान हो, बड़े से बड़ा आलिम हो, बड़े से बड़ा मालदार हो, बड़े से बड़ा ताकतवर हो, आपको हक बात उस तक हिकमत और बसीरत के साथ पहुंचाना, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। अस्सलाम वालेकुम।